Hello and good evening, everyone, and welcome to the Moksha Canada get together for the seniors. As we all know, the purpose of Moksha Canada Foundation is to spread awareness amongst communities about all the. Something is wrong. Something wrong. Can you hear me? Yeah, we can. I don't know. I thought my this thing is hanging. We can hear you, Meetaji. Do you want me to restart the recording? Stop it? No, it's okay. Okay. Now we are here with the fresh session for the seniors about winter care. Actually, I'll be presenting a PowerPoint presentation. This is mainly focused on seniors, though all the points that I have mentioned in my presentation are equally important and useful for every age group, right? Except for, there are certain things that we have to take special care of for children. So we'll have this few tips. We all know everything. We all know, हम सबको पता है हमने अपना ख्याल कैसे रखना है और इतने सालों से हम अपना ख्याल रख ही रहे हैं बट फिर भी कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान नहीं रहता तो हम उससे उनको ध्यान रखने से पहले अगर हम कुछ प्रॉब्लम होने से पहले उनका ध्यान रख लें तो हमें वो प्रॉब्लम कभी हो ही ना सो ओके एज आई ऑलवेज से जो भी मेरे सेशंस में बोलती हूँ उसमें हमेशा थोड़ी छोटी टिप्स होती हैं और बाकी प्यार मोहब्बत और केयर की बात तो है ही है विंटर केयर फॉर सीनियर्स सम टिप्स सम केयर सम लव लेट्स बी मोर माइंडफुल हम थोड़ा सा अवेयर रहें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है किस टाइप से वेदर चेंज हो रहा है और किस टाइप से हमने बिहेव करना है समटाइम्स हमें ऐसे लगता है कि हम ठीक है हम कर सकते हैं ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बट बाद में हमें उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है या उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं राइट सो I have explained. I have bifurcated here in 4 words. Like I've tried to explain. Care means control and observe. A is for assist and guide. R is for recognize and rest. E is for enjoy and relax. So, what do we have to control? What control measures we have to take, and what kind of we have to be observant all the time. To what extent and what kind of things we have to be observant about. Okay. Then next point is assist and guide. So we have to learn. We always do. We know that we have to help each other, assist each other, and guide each other. And if we have a problem, we have to recognize it in the beginning only and take proper rest or whatever is advised to us. And alongside, we should be enjoying our life and relaxing. Enjoy the winters fully, right? So in the next slides, we'll be seeing what kind of things. So care defined. This is the definition in one of the government perspectives, public health, declarations. The provision of what is necessary for the health, welfare, maintenance, and protection of someone or something. So, following this definition of care, that the government of Canada has designed certain programs for the seniors and certain care points, which will be looking in the next slides. Okay, so this is just a small data. This is just a small graph where I'm trying to tell you that the number of seniors in Canada and in fact all over the world has increased great deal by a big percentage. And in the coming times, in the future years,
it is going to increase manifold. As you can see the graph, like how it was, and it is the number of seniors is going to be big high in 2080. This has been estimated by the authorities, and as the number is going to increase, we have to have more awareness, more facilities, and more care for our health. Next, please. So, as I said, that I have used certain data by the Ministry of Public Health, and I went through that, and I'm sharing what they say about chronic diseases and aging. So, the report published by Ministry of Public Health and Chronic Diseases and Aging defines Canadian seniors as people aged 65 years and older who live within the geographical boundaries of Canada. Federal and provincial governments may also make their own rules. For example, in some provinces, there may be the rules are a bit different. In some provinces, senior citizens can be termed as senior citizens from the age of 55. Certain government financial benefits, however, such as Canada Pension Plan, CPP, Old Age Security Benefits, and the Ontario drug benefits often don't become available until a person is at least 60 or 65, depending upon the type of benefit and eligibility requirements. So this is what the Canadian government has to say about who can be termed as senior, who can be called as senior to enjoy all the facilities. Yes, please. Okay, so there are various aspects that I, lined out for taking care as far as senior care is concerned. So first aspect is physical health, which naturally relates to our body, which relates to our temperature fluctuations in the outside of our houses, in the atmosphere, the temperature fluctuations, the cold, and then the impact of this temperature fluctuation on our body. I mean, the kind of, we usually have cold, cough situations during winters. We have problems regarding blood circulation also during winters. We often face digestion problems during winters more than we face in summers, because intake of water is much, much more in summers during summers. We face many skin diseases during winters. As we have centrally heated houses, our skin loses its moisture. And not only that, the winters and the temperature fluctuation, they cause so many problems on the skin. We get itching, the skin shedding, and so many others. And of course, so many elderly people, they automatically start suffering from body pains more during winters, and breathing problems can be there. Weight gain can be there, and weight gain can lead to so many other problems like high blood pressure and acidity, because when we are not moving a lot, we are gaining weight, so which can create problems. So we'll be touching each and every aspect a little bit, because we all know everything, but we'll be touching, okay? So then emotional problem during winters, because we are alone. I mean, we are stuck up at home. We cannot go out and, sit in the parks and meet our friends, or, go out for walks like, freely. So we do get to face certain problems in emotional health, like boredom, loneliness. I mean, because the activity is little only. And then this is something called seasonal affective disorder, SAD. The word itself, the term itself, sad, denotes that you don't feel so happy when you are sitting inside and the weather is not so pleasant or gloomy outside. So automatically you also start feeling a bit gloomy. And then mental health problems arise because of your emotional problems, depression. The brain activity also reduces a bit, because we are not doing much of work. So naturally our brain is not that active.
So it may lead to lack of creativity, and lack of creativity always leads to problems. Okay. Then how do we take, which aspects we should be taking more care about among seniors is about falls. During winters, the seniors, they tend to fall a lot because the floor becomes very slippery if they go outside in the snow, and they should be wearing proper shoes, and they, even at home, they tend to fall. I'll tell you, we'll discuss how, and you can also give me some pointers about it. And pneumonia, of course, you may catch cold and your lungs may get affected. Okay, then as I said, depression, heart attack. These are the four main problems which have been noted in the public health care system, noted by the public health care system of Canada. Okay, these are certain issues that have been discussed by public health department, which need to be taken care of. And if we learn about these things, we will become more aware of what may happen. So let us learn about hypothermia. It occurs when body temperature drops to a dangerous level. As I mentioned about temperature fluctuations, your body temperature can drop when you are out in the cold for an extended time because it begins to lose heat quickly. Older adults are at an increased risk of hypothermia due to changes what happen to your body with aging. Okay. वार्निंग साइंस क्या होते हैं कि आपकी जैसे ही आप बाहर निकलते हो, थोड़ी ज्यादा देर ठंड में रहते हो, तो आपकी जो स्किन है वो एकदम से आपकी पेल होनी शुरू हो जाती है. स्पेशली जो मुझे समझ में आता है, यहाँ से आपकी जो आईज के आसपास का रीजन है वो पेल होता है, और या फिर हल्का सा ग्रे कलर का होना शुरू हो जाता है. आप बड़े एग्जॉस्टेड फील करते हो, बड़े, और जब इस काफी देर बाहर रहते हो तो क्योंकि ठंड लग रही है आपको, कोल्ड, यू हैव बीन द स्टक बाय द कोल्ड weather, and the temperature is so low that your brain also stops functioning in a proper manner. So you may get confused, you may feel sleepy because blood circulation भी कम होगा, lethargy होगी, और आपको sleepy feel होगा. And weak तो आप feel करोगे ही, आपको चलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड, राइट. ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बीट जो है थोड़ी स्लो हो रही है, तो इस तरह से वार्निंग साइंस हैं. सो दिस इज व्हाट वी एडवाइज टू ओल्डर पीपल, नॉट टू स्टे लॉन्ग आउटसाइड फॉर वेरी लॉन्ग. इंडोर टेम्परेचर्स अपने हिसाब से थोड़ा वार्म रखें और ड्राई रखें, क्योंकि अपने आप कभी भी वेट क्लोथ्स ना पहने. अगर बाहर से आते हैं और आपके क्लोथ्स थोड़े से भी वेट हैं तो बहुत जल्दी चेंज करें उनको, और अपने आप को स्मार्टली ड्रेस, स्मार्ट इन द सेंस दैट यू नो योर बॉडी वेल, राइट. वी नो, अपनी बॉडी के बारे में मुझे सबसे ज्यादा पता है, तो उस हिसाब से अपनी, चाहे जिस टाइप की लेयर्स आपने लेयरिंग करनी है, लेयरिंग कीजिए, उससे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है. और थर्मल जरूर पहन के रखें, और हैट्स, ग्लव्स, कोट, बूट, स्कार्फ, प्रॉपर शूज, एज आई ऑलवेज से, scarf to cover your mouth and nose. So please take care. Okay. Now, next is after hypothermia, it's frostbite. Frostbite क्या हो जाता है कि जब आपको ठंड लगती है, आपकी ठंड में आप ज्यादा देर रुकते हो, तो आपकी स्किन पर I प्रॉब्लम. just have to use the washroom for about a minute, so this is going to be on for like a little bit less than a minute. I just thought I'd tell you. Okay. So yeah. So what happens is that जब ये आपकी बॉडी टेम्परेचर एकदम से घटता है, तो आपकी स्किन से होते हुए जो कोल्ड, जो उसका है, ठंड जो होती है, वो आपकी बोन्स तक पहुंच जाती है, तो इससे फ्रॉस्ट बाइट होते हैं. तो ये जो हमारी, क्योंकि ये सर्कुलेशन की बात हम करते हैं ना, जब भी हम बात करते हैं, आप देखोगे कि आपके पैर सबसे ज्यादा पहले सुन होते हैं, या जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पैरों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो सबसे दूर है आपके हार्ट से. हार्ट तो सर्कुलेट करता है, ब्लड को पंप करता है, तो जो पैरों के तक पहुंचते पहुंचते वो ब्लड जो है वो ठंडा होता जाता है. तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले उन जगहों पर स्टार्ट होगी जहां जो आपके हार्ट से दूर है. तो जैसे पैर हैं, योर फीट है ना,
तो इस तरह से ये फ्रॉस्ट बाइट की प्रॉब्लम से हमको बड़ा बच के रहना है। और उसके बाद बाकी जगहें हैं, नोज, ईयर्स, चिन, फिंगर्स, टोज, एज आई सेड। एंड कुछ केसेस में फ्रॉस्ट बाइट जो है लिम्स को इतना बुरी तरह से अफेक्ट कर देते हैं कि कई लोगों को, मैंने सुना है कि बोन्स वगैरह थोड़ा बहुत गल भी जाती हैं, उनकी टांगें काम नहीं करती हैं, तो हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता, टेम्परेचर इतना लो हो जाता है। सो ये डराने की बात नहीं है, हमें पता होना चाहिए भी ऐसा होता है, तो ताकि अगर किसी को अपने आसपास है तो हम उनको साथ के साथ उनको बता सकते हैं कि भी हमें मालूम है, तो यू कैन सी दैट, ओके। देन एज आई सेड कि हमेशा जब भी आपने बाहर निकलना है बहुत अच्छे से कवर करके निकलना है। आपकी अपनी जैसे ही आपको लगे कि आपकी स्किन कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही है, तो यू हैव टू बी अलार्म्ड, ओके। और उसके बाद उसके जो साइंस क्या हैं फ्रॉस्ट बाइट के, दैट जो स्किन आपकी जो वाइट है वो एशी सी, येलो सी हो जाती है, ग्रे सी या येलो हो जाती है। और आपकी स्किन हार्ड हो जाती है, बड़ी नमनेस सी फील होती है, स्पेशली फिंगर्स में और फीट में, टोज में आपके। तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर मेडिकल हेल्प इन सच अ सिचुएशन। एंड और सबसे पहले तो क्या करना है कि आपने वार्म करना है अपने आप को, और हॉट वाटर में अपने हाथ पैरों को डिप कर लेना है, ताकि आपके जो आप उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं उससे बच सको। सो आई होप Hania is back. No, Hania is not back. Okay. तो ये जो मैंने डेटा उठाया है ये पब्लिक हेल्थ का। ओके हन्या, कैन यू डू इट टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो डेटा उठाया है ये मैंने पब्लिक हेल्थ केयर के जो वेबसाइट्स हैं उन उनसे ढूंढ के निकाला है। तो अब इंजरीज भी होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो स्नो शवल करनी होती है हमने, उससे भी इंजरी हो सकती है। तो स्नो शवलिंग अगर आप खुद करते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात से प्रिकॉशन लेकर के करें। तो एक तो क्योंकि ठंड है, हार्ट की प्रॉब्लम, नमनेस की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम ये तो होंगी, आपके ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर इतनी ठंड में अब जब आपका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो इस तरह की स्ट्रेनस एक्टिविटी को, मेहनत वाला काम करते हैं आपको, तो आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और बैलेंस का भी बहुत ध्यान रखें। यू डोंट वांट टू फॉल डाउन व्हाइल शवलिंग, ओके। सो एज एज के अनुसार हमारी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस करके, और कैल्शियम कंटेंट और विटामिन डी तो वैसे हम सब में डेफिशिएंट है, तो इस वजह से वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यही जो मैंने बताया कि गिरने से बहुत बचना है आपने। इट इज़ वेरी इजी टू स्लिप एंड फॉल इन द विंटर, स्पेशली इन आइसी एंड स्नोई कंडीशंस। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो अब क्या क्या एहतियात करेंगे ये तो हमें पता ही है। हमने ध्यान रखना है कि हमने जहाँ भी अगर वॉक करनी भी है बाहर जाके, तो क्लियर जगह पे वॉक करनी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करते हुए, स्नो ऐसी जगह हो वहाँ पर ना करें आप वॉक, घर में कर लें। बहुत अच्छा रहता है। मैं तो सभी को ही एडवाइस करती हूँ कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आप चलते रहें। स्पेशली जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो वॉक हो जाती है आपकी। और एज आई सेड, वियर बूट्स विद नॉन स्किड होल्स, ये स्लिप करने से आपको बचाएंगे। और अगर आप स्टिक यूज करते हैं, केन यूज करते हैं, तो वो बहुत ही सेफ है। मोस्टली मैंने सीनियर्स को देखा है कि वो स्टिक यूज करने के नाम से घबराते हैं, कि उनको ऐसे लगता है कि लोग कहेंगे कि ये बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई है। बट स्टिक यूज करना अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और एक अच्छी सी केन लें जो कि आपकी ग्रिप अच्छी हो और आपको सपोर्ट करें, और उस तभी आप वॉक पे जाएं अगर आपने जाना ही है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ड्यूरिंग विंटर्स ये प्रॉब्लम भी देखी गई है, फायर्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की,
क्योंकि फायर प्लेस होते हैं और उसके बाकी हीटिंग सोर्सेज में से नेचुरल गैस है, केरोसिन है, तो इस तरह की चीजें कई बार लीकेज हो जाती है, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अगर आपके घर में फायर प्लेसेस जो भी आप सभी के घर में होते हैं, तो अगर जरा सी भी स्मेल आ रही है, कुछ भी हल्का सा भी इंडिकेशन होती है, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज जब सीनियर्स होते हैं दे कैन नॉट मूव सो फास्ट, राइट? सो इस तरह की लीकेज से काफी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो इसके होता क्या है कि लीकेज हो रही है कि नहीं, स्मेल आने से पहले आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, नोजिया फील होता है, वॉमिट की फीलिंग आती है, डिजीनेस, आपको दिखना भी बंद हो जाता है, और कई बार तो कॉन्शियसनेस भी आप लूज कर सकते हैं। सो ओके, अब हमने ख्याल क्या रखना है इसमें, अपनी जो चिमनीज हैं, जो भी हमारे फ्यूल्स के साथ रिलेटेड चीजें हैं, उनको पूरी तरह चेक करवाएं, और कुछ भी आप अच्छे से उसको क्लीनिंग करवा के यूज किए करें विंटर से पहले। और अगर आपको हल्की सी भी कुछ आती है स्मेल, तो एक थोड़ी सी विंडो खोल के रखें, और उससे हमेशा सेफ्टी रहती है। स्मोक डिटेक्टर्स हमारे इंडियन हाउस होल्ड में मैंने देखा है, लोग अपने स्मोक डिटेक्टर्स के ऊपर भी कुछ कुछ लगा के रखते हैं, ताकि जब हम पूड़ियाँ तलें और परांठे बनाएं तो स्मोक से अलार्म ना बजे। बट वो अलार्म बजना ठीक है, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर हमारा ऑन होना और प्रॉपरली फंक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। और हीटर्स को किस ढंग से रखना है, और किस तरीके से रखना है हमारे घर में, वो अपने थोड़ा वुडन फर्नीचर से बचा के, कर्टन्स वगैरह से बचा के। हमारे अभी रिसेंटली जस्ट हमारे फ्रंट सामने वाले घर में आग लगी थी, वो जोत जगाई हुई थी उन्होंने। तो जोत होती है ना, व्हेन यू प्रे इन लाइक वी हैव दिस what do you call incense stick. Along with incense stick we have this some small lamp, right? Kerosene lamp burning, and then we pray that जोत, उस जोत से जो है सामने वालों के घर में काफी आग लगी, उनके बेडरूम में, तो वुडन जो फर्नीचर जल गया। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि विंडोज खुली नहीं होती हैं, राइट? सो इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और अपने घर में जो भी आप स्टोव वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी आपने बहुत ज्यादा केयरफुली उसको इस्तेमाल करना है। थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, तो ड्राइविंग के दौरान जो सीनियर्स ड्राइव करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, तो सबसे पहले तो टायर्स चेंज करवाएं। यू नीड टू गेट योर टायर्स चेंज्ड, and it has been observed, और ये data भी है, there's a data available that after 65, adults 65 and older are involved in more car crashes per mile driven than those in earlier nearly all other age groups. Winter is an especially important time to be vigilant while driving, because road conditions and weather may not be optimal. You know, कार्स तो स्लिप करती हैं बर्फ पर, तो आपने बहुत ज्यादा ड्राइविंग के दौरान ध्यान रखना है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो के कई सीनियर्स में इतनी अलर्टनेस नहीं होती, वो इतना जल्दी, इतना रिफ्लेक्स सेक्शन उनका इतना शार्प नहीं होता कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे हैंडल करे। दे टेंड टू गेट नर्वस ऑल्सो। So we have to be, you can avoid driving if you can, then it's the best thing to do. So you have to prepare your car. This is what the term is, winterize your car before using in this weather. Everything, the tires have to be changed, the windshield wipers have to be checked, everything should be in order if you want to drive and go out. Okay, and everything, you have to take special care. The seniors have to take special care during winters while they are driving on road. Thank you. Next. Okay, so what do we have to have in car before we go out driving? When we are driving during winters, just check that your first aid kit is there, you have extra blankets, some extra warm clothes in your car, there is some booster cable, windshield scraper, because ice may block with your vision, shovel has to be there, rock salt,
water and dried foods, canned food, flashlight, map, or these days we have GPS, but sometimes internet may not function. So you have to have, please take care that you have to have these things in your car before you go. Can I add something? Bag of sand is what they use in Edmonton for the snow. Over here we use salt. In Edmonton, it's only the sand that they use to make the the ice in the roads clean there. Okay, nice. That's why I Thank added you. it because this I've actually seen it myself. That's why. Yeah. That's a good input. Thank you, Hanya. Next slide, please. So lifestyle, this is my favorite topic, our favorite topic these days. So lifestyle changes, क्या करनी है? Of course, eat healthy, avoid fried and fatty food because हमारी movement कम है, तो हमको fried और fatty food खाने का कोई हक नहीं है. We are not supposed to eat fried and fatty food. Warm water पीने की कोशिश करें, जब भी पानी पिए warm पिए. डेयरी को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि कोल्ड एंड कफ होता है तो म्यूकस बनता है उससे. अवॉइड लिटिल बिट, आई मीन इफ यू कैन अवॉइड डेयरी like milk and curd, please avoid if you can, or if you are able to digest then it's okay, but to avoid creation of mucus, please avoid. Eat more whole food grains. ये तो universal है for everybody every time, but especially during winters. Avoid white flour. Okay, eat more whole grains like ragi, bajra, makki, corn तो मक्की की रोटी तो हम खाते ही हैं. Nuts को जरूर ऐड करें अपनी डाइट में. Older people, they may not be able to chew nuts, तो उनको क्रश कर लें, उनको पीस कर लें. मेरे दादा दादी, they used to have अपने विंटर्स में अपने पास बॉटल्स जार्स रखते थे, उसमें उसको फक्की कहते थे. तो they used to crush the उसमें क्या कहते हैं, मगज, almonds, badam, and the seeds, and then they used to have 2-3 more items. I'll tell you what. And these things were so healthy. उसका वो पाउडर सा बना के रखते थे अपने पास. तिल भी, yeah, til. This is what the sesame seeds. These are really good. You just roast them and then you eat them with your dry fruit, your nuts. Use more turmeric and ginger. Turmeric has all the antibiotic qualities, antiseptic qualities. Ginger is very, very good during winters, and tulsi too, if possible. Cinnamon is a very good spice that you can use during winters. You can use it in your tea, and make jaggery and honey part of your plate during winters. So if you want to, like मीठा तो वैसे ही winters में खाने का ज़्यादा दिल करता है, तो जैगरी गुड़ आप रख सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं, और लीफी वेजिटेबल्स तो हमेशा ही आपने खानी है, और स्पेशली जो रूट वेजिटेबल्स होती है, और विंटर्स में वो मिलती भी बहुत प्लेंटी में है, शलगम वगैरह, वो सब खाएं. एग अगर आप खाते हैं, अगर आप नॉन वेज थोड़ा बहुत खाते हैं तो एग जरूर खाएं. सूप आप पी सकते हैं, सूप बहुत हेल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं और इंस्टेंटली आपको गर्माइश देते हैं. ओके, देन above all, own your health and act responsibly to maintain good physical, etheric, emotional, mental health along with spiritual health. जैसे आपको पता है, आप ड्यूरिंग विंटर्स घर में स्टक हो, आप ज्यादा बाहर घूम नहीं रहे हो, तो आपने अपने आप को थॉरली एंटरटेन्ड रखना है. आलू बड़े करारे को बार बार सुनना है, उसके साथ डांस करना है. ठीक है जी. जस्ट सेइंग दैट. एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, मेडिटेशन आप जरूर कीजिए. पाठ जब आप पढ़ते हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन. Meditation is actually not related to any religion. So meditation is what? Meditation basically अपनी सांस को, अपनी ब्रेथ को देखना है, आना जाना. लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं, मैं बार बार उनको ये जवाब देती हूँ. वो कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, तो मैं हमेशा ये पूछती हूँ, ध्यान लगाना कहाँ है, ये भी मुझे बता दो, मुझे तो पता ही नहीं ध्यान कहाँ लगाना है. आप सिर्फ अपनी सांस की तरफ ध्यान लगाएं. पाठ कीजिए, पाठ तो जरूरी है, पर उसके साथ साथ जितना पाठ आपको अच्छा लगता है कीजिए. मेडिटेशन
breathing 5 minutes twice a day, like a dose. जैसे दवाई आप खाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। उसका रीजन मैं बताती हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ कम मिल रहे हैं, कितना फोन कर लेंगे, कितनी व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे, तो वेंटिंग आउट नहीं हो रही है। वेंट नहीं होता, अगर हमारी वेंटिलेशन नहीं होती हमारी थॉट्स की, तो नेगेटिविटीज बाहर नहीं जाती हैं। तो उनको हटाने भगाने के लिए ये ब्रीदिंग मेडिटेशन के साथ साथ ये बहुत जरूरी है। आप आराम से आईज क्लोज करके चेयर पे बैठे, बेड पे बैठे, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है। जस्ट कीप योर हैंड्स ओपन in your or put your hands in your on your thighs or wherever। तो उनको आराम से रखिए और आराम से अपनी सांसों को आते जाते महसूस कीजिए। एक सांस आ रही है, जो थॉट्स भी माइंड में आती हैं उनको आने दो, आती हैं वो चली जाती हैं। जितना आप किसी थॉट को अपने माइंड से हटाने की कोशिश करोगे वो बार बार आएगी। इसलिए किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना, ऑब्जर्व, सांस को भी कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते रहें और आप देखिए कि आप 5 to 6 मिनट्स के बाद यू विल बी फ्रेश, रिजुविनेटेड, फुल ऑफ एनर्जी। आपका ब्रेन शार्प होगा, आपकी क्रिएटिविटी और तेज हो जाएगी। और अगर आपको कोई हंगर प्रॉब्लम है, कोई स्लीप प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको थी। सो प्रैक्टिस दिस। और अगर इसके साथ साथ अगर आप साथ में फॉरगिवनेस भी के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कभी जिनको कभी आपने जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाया हो, उनसे आप माफी मांगे। जिन्होंने कभी आपको जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाया हो, दुख तकलीफ दी हो, आपको दिल पे चोट लगी हो, उनको माफ करते रहें। किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट रैंडमली ये लाइन बोलते रहें, मैंने किसी को भी दुख तकलीफ दी है जाने अनजाने में, मैं उससे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। जिसने मुझको दुख तकलीफ पहुंचाई है जाने अनजाने में, मैं उसको माफ करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि इससे मेरी सेहत ठीक रहती है। ये सोचते रहे, अपनी सांस को देखते रहे, महसूस करते रहे, वो आ रही है जा रही है, और कोई सोच नहीं आएगी। 5 to 6 मिनट्स ट्वाइस अ डे ये 2 डोज लेंगे आप, तो आपकी कभी तबीयत खराब नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और अगर आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी दवाइयाँ छूट भी सकती हैं, स्पेशली बीपी शीपी की ये सब दवाइयाँ छूट सकती हैं। सो ओके, सो दिस इज हाउ यू मेंटेन योर स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके, थैंक यू सो मच। वैल्यू योर लाइफ, जैसे मैं हमेशा, हम लोग सब जानते ही हैं, इतनी शानदार जिंदगी हमें ऊपर वाले ने अता की है, उसने हमको ये बख्शिश की है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने इस शरीर का, अपने मन का खुद ध्यान रखें, अपने आप से बहुत सारी मोहब्बत करें, बहुत सारा प्यार करें, और तभी हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। or there are so many points which can be added, let us discuss. Thank you. पिताजी, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुई, मैं वो जो शेयर करना चाहती हूँ। हाँ सर, प्लीज प्लीज। 3-4 साल पहले की बात है। तो मैं क्या करती थी, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं इमीडिएटली मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती थी, डेली इमीडिएटली। बाकी सारे बाद में करते रहे। मैं मतलब अपने बेटे के पास ही डॉक्टर इनला बाकी काम कर लेती, मैं खा के निकल जाना। एक दिन की बात है, मैं वेलवेट का सूट पहना और फुल स्लीव स्वेटर नहीं, यही पहनना था, एग्जैक्टली यही वाला, हाफ स्लीव। अच्छा। ऊपर से मैंने फुल कोट पहन लिया, ओनली सिंगल सॉक्स, बूट पहन लिए, कैप ले ली, मैं बहुत मोटी नहीं, सिंगल बूल की थी, वैसे पहन ली। मैं निकली बाहर, मुझे ना ठंड सी लगी थोड़ी, ग्लव्स भी पहने हुए थे। तो मैं निकल पड़ी अपनी, मैं तकरीबन गई 200 मीटर गई होंगी मैं। तो मुझे ना एक काली लेडी आके, कहीं सड़कों पर कोई नहीं, कहीं भी नहीं था, काली लेडी ना ऐसे ऐसे मेरे को कहे, मैं क्या रोड सारी खाली है, इसको क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों करती है। फिर आगे मेरे पास करती है ऐसे, मैं
करती रही, मैं चुप करके चलती रही। थोड़ी हम्म, दूर जाके मुझे ज्यादा ठंड लगी, हवा भी लगने लगी और हवा यहाँ इफेक्ट करे सीधी कोर्ट के बीच में से। तो मैंने कहा ये न्यूज़पेपर होते हैं, यहाँ मैं ले जाती हूँ। हम्म, थोड़ी दूर जाके था मतलब, ते मैं तो कहना 500 किलो वो मीटर चल गई। तो मैं क्या बड़ी ठंड लग रही है, यहाँ क्यों लग रही है हवा ठंडी ठंडी कोर्ट के बीच में से। तो मैं गई न्यूज़पेपर मैं ले लूँ, आई तो हुई हूँ। जब गई तो वो डब्बे खाली, न्यूज़पेपर नहीं थे। वापस मुड़ी, मैं तकरीबन 100 मीटर चली होंगी ना। मेरे ये काब्स ये क्या बोलते हैं टांगों के हाँ, पिन्नियाँ, पिनिया, उनमें ना दर्द सी होने लगी। हम्म, तो उस फिर मैं तेज तेज चलने लगी। फिर मैं देखा है तो मेरी टांगें सुन उठी, मैंने ना भागना शुरू कर दिया। ओके, मैं भाग के आई आगे, तो घर हमारा रह गया था 20 मीटर। तो अच्छा, हमें पड़ोसी हमारे कार में निकले, कहते हाय आंटी तुसी इन्नी ठंड च बाहर घूमते पे। मैं कोई जवाब नहीं दिया, जाके अंदर गई। तो मेरे, मैं सच बताऊं, मेरे से बूट ना उतरे। कोट मैंने ऐसे दरवाजे लगा वैसे ही फेंक दिया उतार के फटा। हम्म, मैं कहा अगर किसी को बताया ना मेरी शामत आ जानी, डॉक्टर ने ना तो मेरे बाल पट देने, हम्म, अग लगी सैर करन दी है। मैं ना चुपचाप ऊपर अपने बेडरूम में गई। मेरे नाल टांगे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। पहले मैं एकदम बाथरूम में गई, गर्म पानी चला के मैं थोड़ी देर उसमें रखी। यस, हाँ, फिर भी मुझे कुछ ना हो, मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं, ब्लड सारा सर्कुलेशन बंद हो नंबनेस गई। नंबनेस आ गई, हाँ, मैं ना फटाफट ब्लैंकेट लिया, उसमें ऐसे कर, मेरे को आई ना गर्मी ना आए नेकी ना आए। फिर हम्म, याद है कि मैंने ना अपने अलमीरा में वो क्या किशमिश ला के रखी हुई है, एक लिफाफा बड़ा। ओके, मैंने जल्दी से 2 मुट्ठियां भर के खा गई मैं किशमिश की। गुड, गुड डिसीजन, पता नहीं क्यों मेरे को इमीडिएटली मैं खा गई। फिर ना मैंने स्कार्फ मोटा सिर पर लपेटा, 2 कंबल लिए, पड़ गई चुप करके। तो मैं कहा, जब थोड़ी होश आई और मैंने कहा टेम्परेचर देखो कितना है, तो -46। ओ माय गॉड, माय गॉड, मैं मेरा ये एक्सपीरियंस ना मुझे रोंगटे खड़े अब भी कर देता है। ये पॉइंट मुझे ऐड करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में कि पहले टेम्परेचर चेक करें फिर बाहर निकलें। मेरे को लेडी भी इसीलिए कह I'll रही do थी, वो that. काली भी कह रही थी इसीलिए कि अंदर जाइए कहाँ हाँ, घूम इशारे रही कर है, रही होगी भी ये क्यों आपको। घूम रही है। और मतलब कपड़े भी ज्यादा 2 नहीं मैंने पहने हुए। ये आधी वहां के साथ यही पहनी हुई थी, बिल्कुल माय यही याद है गॉड, मुझे। नहीं तो 2 कोटी पाल कोई फुल स्लीव्स की या कुछ नहीं। ऐसा नहीं मैं फिर ना मैं इंडिया में भी अपने ब्रदर को बताया, तो तेरे जैसा पागल कौन होगा। तेरे दिखा नहीं जाता टेम्परेचर, मैं आज तक नहीं डॉक्टर ने को बताया। नहीं नहीं ठीक है, बच्चों को बताओ, बच्चे गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं ना मतलब वो भूलती नहीं इंसिडेंट मुझे कभी भी। चाहे टांगों मैं दौड़ू, मेरे से दौड़ा ना जाए, अपनी तरफ से मैं दौड़ी खूब। मैंने कहा दौड़ने से जरा गर्मी आएगी, काफी दौड़ी मैं। स्नो भी थी, सब था। चलो आप दौड़ लिए, बट यू हैव टू बी केयरफुल इन लाइक स्नो में दौड़ने के मामले में भी केयरफुल होना चाहिए मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा। चलो गुड। एवरीवन, जी सर। मीता जी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली हैं, सो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसा मैं जनरली कहता होता हूँ कि आप हम सब पंजाब को बिलोंग कर रहे हैं, और पंजाब में मेरा ख्याल कोई ऐसा शख्स होगा जिसने पंजाब रोडवेज में कभी यात्रा ना की हो। उसकी भी एक वहाँ पे ऐसी लिखा होता है, इंसिडेंट है जो या भूलती नहीं, वो बाद में उसमें भी, बताऊंगी। या उसमें एक लिखा होता है साथ बस के ऊपर, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। खुद जिम्मेवार है। और अगर जैसे इन्होंने कहा अपना जो अध्यात्म की तरफ से अगर लें तो एक आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है या ये शरीर में है, तो वो शरीर की जो आत्मा जो है वो शरीर की बस है। सो इस बस में जब बैठे हैं तो हर इसकी चीज़ों को भी ठीक रखना है। सो इसके लिए हमें अपने खान पीन के ऊपर ध्यान करना, इसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ताकि वो बस के हजोके ना पड़े, उसके टायर ठीक हों, ताकि वो पंचर ना हो। जैसे इन्होंने अभी बताया कि हम जब ड्राइव करते हैं सर्दियों में तो हमें अपने टायर वायर देखने चाहिए।
एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करने आनी चाहूंगा कि जब आप सर्दियों में अपनी गाड़ी लेके निकलते हो, पहले तो यह है कि स्टार्ट करिए और 3-4-5 मिनट तक गाड़ी को थोड़ा अच्छा तरह गर्म होने दीजिए, थोड़ा सा एक्सीलेटर दीजिए ताकि पूरी तरह इंजन जो है आपका गर्म हो जाए। उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्रॉस्ट होती है जो कभी कभी तंग करती है, हाँ, तो उससे आपका इंजन गर्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप चलें 100-50 मीटर चलने के बाद अपनी ब्रेक को जरूर चेक करें। कई बार ब्रेक म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। म्यूट पे हाथ लग गया था। हाँ। तो उस ब्रेक को चेक करने के लिए सबसे बड़ी, बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं लगती, और सर्दियों में खासकर जब आप स्नो एरिया में से गुजर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी ब्रेक को जरूर चेक करते रहिए। और दूसरा ये कि जब आपने मोड़ना है तो पहले आप रुकिए फिर आप मुड़िए, नहीं तो बहुत बार स्लिप आपकी गाड़ी जो स्किड कर जाती है। इसलिए अपने एक तो जो डेजिग्नेटेड स्पीड है पर्टिकुलर कनाडा में, जब स्नो पड़ी हुई हो तो आप उसको, अगर वो 40 की है तो अपनी गाड़ी को आप 30 पे रखिए, क्योंकि जगह आपको स्टॉप साइन भी आते हैं तो वहां पे रुकना मुश्किल हो जाता है। कई बार अक्सर देखा गया है कि स्टॉप साइन के ऊपर जो है गाड़ियां रुकती हैं तो वहां पर थोड़ी सी आइस जम जाती है। सो आप इस चीज़ों का एक तो उस वक्त जरूर ड्राइव करते हुए ध्यान रखें। और जहाँ तक फ्रॉस्ट बाइट की है, अगर कभी फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो जनरली जैसे अभी भांजी ठंड से आए तो एकदम से गर्म पानी में मत हाथ डालिए, रूम टेम्परेचर में अपने जो हाथ है या पाँव डालें ताकि उस जो है धीरे धीरे आपका जो कंट्रैक्शंस हैं वेन्स में वो खुलेंगी, आर्टरीज खुलेंगी। अगर अगर आप एकदम कर देते हो उसमें और गर्मियों की और उसमें ही खासकर आपको चिल ब्रेन की आपका सिंड्रोम, तो उसमें आपको जलन बहुत होती है जब जिनको हो जाती है तो वहां पे एरिया रेड हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर आप ज्यादा देर रहे हाइपरीमिया में उसमें आपको गैंग्रीन भी हो जाती है, तो कभी कभी उंगलियां काटनी पड़ जाती है। सो इसके लिए जो है खासकर जैसे अभी इन्होंने डाइट के बारे में बहुत बताया, सर्दियों में बहुत अच्छी डाइट है मशरूम। मशरूम की आप सूप या सब्जी वगैरह कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा, आपके अंदर काफी तरह की ऊर्जा आएगी उसमें। सेकेंडली मैंने जैसे लास्ट टाइम अपने एक साझा पंजाब में बातचीत हुई थी होम्योपैथी के, आर्निका और एक मेडिसिन दूसरी है जो कि अगेरिकस, एकोनाइट भी अगेरिकस आल्सो, अगेरिकस एंड आर्निका, दे आर वेरी गुड रेमेडीज फॉर फ्रॉस्ट बाइट। यस। और सभी को मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको जैसे स्नो हटानी है, अगर आप 15-20 मिनट से बाहर जाने वाले हो तो अपनी जेब में एकोनाइट आर्निका रखो, दोनों की एक एक डोज लेकर रखो। एकोनाइट आपको अंदर हीट आपकी बचा के रखेगी, जिस तरह से हम कहते हैं ना ये ब्रांडी आपको गर्म रखती है, मैं कहता हूँ आपको जो है एकोनाइट गर्म रखेगी। और आर्निका आपके खून को जमने नहीं देगी। सो ये दो एस्पिरिन का काम करती है। जैसे कि आप अपने टायनॉल पे भरोसा करते हो, ऐसे इन दो पर अपने एक नॉर्मल आप भरोसा करना शुरू करोगे तो आपको एक कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो ये रहा आज के अपने बचने के लिए। और दूसरा जैसे इन्होंने कहा घर में भी, घर में क्या होता है कि बहुत बार हम जो है ना पुराने बुजुर्ग, हमें बहुत एक आदतें हैं बचत करने की, और बचत में लाइट भी आ जाती है। हम कई बार लाइट नहीं जगाते, थोड़ी सी लाइट है तो सीढ़ियां उतरने को उस वक्त पाँव फिसलने का डर रहता है। खासकर घर के अंदर आप लाइट अच्छी तरह से लगा के रखिए, और बाहर निकलते हैं तो अपने चश्मे को हमेशा साफ करके रखो। और सर्दियों में खासकर आपके चश्मे के ऊपर जो है वो धुंध सी आ जाती है जब, और आजकल तो वैसे भी आप ये लगाते हो मास्क होता है। अच्छा, एक और चीज हमने बहुत जब सबने सीखी है जो कि अभी मीता जी ने कहा कि अपने आप को बचा रखना है, लोग कैसे दूर है, और ये आपको कोविड ने तो आपको बता ही दिया है कि बचाव में ही बचाव है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है, अपने आप को आप बचा के रखेंगे। या तो अभी सही है। आपसे मशरूम की आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे मशरूम के बड़े सारे फायदे और याद आ गए। मैंने अभी पढ़े थे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। मशरूम्स जो हैं वो उनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। जी, इसलिए मशरूम भिगो के आप मशरूम्स को डिप करके रख दो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं क्वालिटीज मशरूम्स में।
तो इसका तरीका ये है कि इनको डिप करके रखना है और उसके बाद उनको हल्का सा कुक करके खाना है। बहुत अच्छी तरह बॉयल, वो तलना तुलना नहीं है। खैर तलना तो किस चीज को नहीं है, हम नष्ट करते रहते हैं ना हम लोग पंजाबी। मशरूम के नाम पे याद है। थैंक यू गुरदा जी, बहुत अच्छी आपने टिप्स बताई। थैंक नहीं, यू। और ये जो है अगेरिकस, ये मशरूम से ही दवाई बनती है। हाँ मशरूम से ही बनती है एगेरिकस, यस। हाँ। नाम ही उसका सेम है जी। यस। मशरूम्स तो इतनी अच्छी फ्लेवर होती है, यू कैन जस्ट हैव आफ्टर सोटे, थोड़ा सा करो हल्का सा बटर डाल के तो, और सॉल्ट पेपर डाल के, यू कैन हैव दैट, यस। वेरी गुड। और जो मशरूम बहुत के टेस्टी फायदे भी हैं, होगा। आप अगेरिकस 30 की एक डोज सर्दियों में खा लो तो आपको जो है वो उतना ही फायदा दे देगी अगर आपने नहीं भी बनाई है तो। बिल्कुल ठीक। मशरूम मैंने अभी किसी के घर में गए थे तो उन्होंने मशरूम जिंजर के साथ स्नैक बनाई थी, यू नो, सिर्फ जिंजर का और हल्का सा बटर, सॉल्ट, पेपर। तो इसका उन्होंने उस पे सौते किया हुआ था उनके कुक ने, मतलब उनका जो लड़का था घर में। मैं स्पेशली उससे पूछ के आई थी भी तूने क्या क्या डाला, तो उसने कहा मुझे, मैंने सिर्फ जिंजर और ये सब डाला है। यू कैन यूज दैट, दोनों चीजें बड़ी बेनिफिशियल है फॉर विंटर्स। सबको 1 सेकेंड लगता है उसको कुक होने में। बेनिफिशियल भी है और उससे स्वादिष्ट भी बहुत हो जाती है। और दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको सबको ये कहूंगा कि जैसे लहसुन हो गया, जिंजर वगैरह है, ये जब कोल्ड होती है तो उस वक्त हम फटाफट कहते हैं जी जिंजर वाली चाय बना लो। लेकिन अगर ये कोल्ड होने से शुरू से 15-20 दिन पहले आप डेली आप पी लो तो आपके अंदर इम्यूनिटी बन जाएगी और आपको कोल्ड कफ वगैरह जो है वो होगा ही नहीं। दालचीनी भी डालें, दालचीनी डालें अपनी चाय में विंटर्स में खास तौर से। यस। बहुत अच्छी होती है दालचीनी, इज रियली बेनिफिशियल फॉर योर। In my house, we always make first tea in the morning after breakfast, ginger वाली चाय। उसके बाद 2 बने या 3 बने। फर्स्ट तो विदाउट जिंजर तो किसी को भी पसंद नहीं है। एवरीवन से इसकी आज हमारे दूध भी नहीं डाला। हमारे भी ऐसे ही होता है। या ये तो चीजें होती है। और दूसरी चीज, मैं 2 चीजें और कहनी चाहूंगा। एक तो बाहर जब भी आप जाएं, आप बेशक अच्छी तरह से चल सकते हैं बुजुर्ग हैं, लेकिन एक छड़ी जरूर रखें अपने पास। छड़ी का ये फायदा होगा कि आपको ये पता रहेगा कि जिस आगे जो स्टेप मैंने लेना है वहां पे आइस तो नहीं है। दैट विल आल्सो वेरी हेल्पफुल। और दूसरी चीज जो मैं ये अपना कहना चाह रहा था कि अपना, जैसे इन्होंने में ना अपने आप से प्यार करना सीखो। जब आप अपने से प्यार करोगे तो आपको बहुत सी चीजें हैं, तकलीफें नहीं होंगी। और दूसरी चीज, कनाडा में ठंड बहुत होती है और यहाँ पर जैसे इन्होंने भी बताया एजिंग और ये बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे सब कुछ, क्योंकि ये जो है हेल्थ रिलेटेड कई समस्याएं खत्म हुई हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बीमारी है, वो है जिसे बोलते हैं MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो एजिंग के साथ साथ आती है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जवानी में हम अपने आप को ठंड से बचा के नहीं रखते। वो जो ठंड है धीरे धीरे, जैसे उन्होंने बताया ना, हड्डियों में चली जाती है। तो ये जो बार बार हमने अपने आप को एक्सपोज किया और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये ऐसे इसलिए यहाँ पे है। तो मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और भी छोटे बच्चे हैं, जान कि आपके ग्रैंडसन वगैरह, आप उनको ये समझाइए कि कनाडा में MS की बीमारी को अगर दूर करना है, क्योंकि उसका इलाज तो कोई है नहीं, क्योंकि इससे ऑटो इम्यून डिजीज, और वो ऑटो इम्यून डिजीज वही होती है कि जो आपके सेल्स को खाना शुरू कर देती है अंदर से। और इसलिए अपने आप को वार्म रखना बहुत जरूरी है। सो आप जब बाहर जाते हो तो ग्लव्स वगैरह पहन के रखो। आज मोस्टली जो बच्चे हैं ना, वो खासकर हमारे, मैंने देखा है पंजाबी या इंडियन जो है, ये सिर पे टोपी पहनना नहीं, बाल खराब हो जाएंगे, पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने, नहीं आपको क्यों दिखाएं कि हमें ठंड लगती है। इन चीजों को दूर रखते हुए, अपने फैशन को अलग रखते हुए, अपनी सेहत को पहले काम करिए, यानी कि अपने आप से प्यार करना सीखो। अपने आप को गर्म रखोगे तो आपको ये साइक्रोसिस की बीमारी जो है आफ्टर 50 या 40 के बाद में जब बहुत लोगों को होती है, वो नहीं आएगी। Some of the students I have seen slippers में आए होते हैं इस peak winters में, slippers पहने होते हैं। हाँ, वो अब just हाँ, यस, बहुत कॉमन है, ये बहुत बहुत कॉमन है, पता नहीं क्यों, मतलब दे common डोंट है। अंडरस्टैंड कि इस विंटर्स में आप स्लीपर्स डाल के, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ 2 मिनट्स या 5 मिनट के लिए जाना है, द क्वेश्चन इज यू आर ना, एक्सपोजिंग योर बॉडी यस, इन दिस पीक विंटर। सडन एक्सपोजर है। जैसे अभी मीता जी ने बताया कि चेंज ऑफ वेदर जो आता है, एकदम से सडन चेंज आती है, हमारी सेहत के ऊपर इफेक्ट करती है।
ऐसे ही ये चीज होती है, क्या चाहे आप 2 मिनट के लिए होता है, मैं तो 2 मिनट के लिए निकला था, अरे 2 मिनट में आपने बॉडी को एक्सपोज किया, आपने एक बॉडी के सेल्स को शॉक दिया है। कर दिया, वो जो बिल्कुल। शॉक जो है वो हमने नहीं देना है, अपनी बॉडी को सिस्टमेटाइज करना धीरे धीरे। क्योंकि ये एमएस के मेरे पास कई तरह के पेशेंट आए हैं, उनको मैं, और फिर मैंने स्टडी किया और फिर देखा कि इसका सबसे मेन जो रीजन है वो यही है कि हमारे अंदर ठंड हड्डियों में घुस गई, हमारे सेल ठंडे हो गए, उनको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिला, ब्लड सर्कुलेशन उनका नहीं रहा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो वहां पर जो है वो वीकनेस आएगी आएगी। जैसे कि मैं कहता हूँ, हम जैसे बहुत से हम पंजाब से हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पानी जैसे अगर थोड़ा सा दिया ना तो बीच में बंद कर दिया, किसी वजह से बंद हो जाए तो वो पूरा तरह नहीं जाता, वो आगे की धरती है वो सूख जाती है, उसमें फिर और देना पड़ता है वो। लेकिन इधर इस साइड की फसल जो वो अच्छी हो जाती है, जहाँ पे पानी हमने नहीं पहुंचा था वो सड़ जाती है। तो वही हमारे शरीर के साथ, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशंस हैं वो ब्लड के थ्रू ही हमारे जाते हैं, हमारे एक एक नस को, हमारे नाखूनों। बिल्कुल। और ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं इसमें सबसे पहले असर पड़ता है, चाहे हाथ हो चाहे आपके पाँव की उंगलियां हैं, ब्लड जो है सर्कुलेशन पहले यही रुकता है। इसलिए सर्दियों में हम हाथों को तो क्या गर्म कर लेते हैं रगड़ रगड़ के, वो पैर रह जाते हैं बेचारे। कलियों को भी रगड़ना चाहिए, और नहीं तो जैसे बैठे बैठे अपने हाथों को रगड़ते हो, आप एक दूसरे पाँव के ऊपर अपने पाँव की जो है सोल, उससे अपने पाँव को मसल लो, खासकर नहाते हुए तो मसल ही सकते हो आप। अगर ये ऐसे मसलते रहोगे तो पेडिक्योर मैनिक्योर भी नहीं करवाना पड़ेगा। मॉइस्चराइजर लगाते हुए बड़े अच्छे से मसाज कर सकते हैं आप। Yes. यू हैव टू बी, पैरों को पैरों की तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने पैरों को अच्छे से एक्यूप्रेशर भी करते रहे, हर पॉइंट को, पैरों को प्यार प्यार से। पैर बेचारे सबसे इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एज पार्ट। हीलर, एज अ हीलर, इसका ध्यान नहीं करते। क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, तो हमारे एनर्जी हीलिंग में जो हमारे सोल माइनर चक्रस हैं, जो पैरों के नीचे के चक्रस हैं, सोल माइनर चक्रस हैं, वो उनके थ्रू इन्फेक्शंस और उनके थ्रू नेगेटिविटी बहुत एंटर करती है, ये हमें पढ़ाया जाता है। तो जब भी हम हीलिंग करते हैं एज हीलर्स भी, तो जैसे किसी को इन्फेक्शन भी होती है, तो हमें पता ही है स्प्लीन है सबसे ज्यादा, तो गढ़ है जहाँ पे कि इन्फेक्शन से फाइट करना है, लिम्फेटिक सिस्टम का वो पूरा एक एपिसेंटर है। तो वहाँ पे लिम्फ जो है वहाँ पे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हमारी फाइट करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। स्प्लीन चक्र की भी हम हीलिंग करते हैं, साथ साथ हम सोल माइनर चक्र की भी बहुत ज्यादा हीलिंग करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, राइट। जब भी हम कहीं जाते हैं, तो अगर नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, किसी भी जगह में जाएंगे, सबसे पहले आपके पैर उस जगह को टच करते हैं, राइट। सो बेचारे सबसे ज्यादा इग्नोर्ड हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पैरों को जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो ऐसे पैरों को अपने पॉइंट्स को दबाते जाइए प्यार प्यार से, फिंगर्स के, अपने टोज को भी अच्छे से, ऐसे जैसे फिंगर्स हैंड के दबाते हैं आप, पता नहीं दबाते कि नहीं, ये भी दबाया करो। और चाहे विंटर्स है चाहे समर्स है, चाहे आप यंग है चाहे ओल्ड है, तो ऐसे ऐसे अपने जरूर दबाते रहें हर पॉइंट को, हर टाइम, मतलब दिन में एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। जब भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो आप जरूर लगाएं इसको, एक बार तो कर ही लें। पैरों को भी इतने प्यार से ही बेचारों को बहुत लाड़ दें, दुलार दें, बड़े अच्छे पैर हैं, आपको जगह जगह लेके जाते हैं। जी। राइट। ओके जी, एनीवन बहुत एल्स? अच्छा सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं डेली रूटीन में, मतलब होता भी है, नॉलेज भी होती है, बट वी जस्ट इग्नोर, अपना थोड़ा सा लेजीनेस हो जाती है, चलो छोड़ो क्या करना है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, फिर लगता है नहीं नहीं, वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, और I was करनी gonna चाहिए। add, if you're talking about mushrooms, there's this kind of a gravy or something you could use on burgers or anything. It's called Spilsbury. So it's like a Yeah. gravy made with mushrooms, and it's really healthy to eat during winter. So that's definitely something you should do. Yeah. Like we often make it. As such, yeah, mushrooms are as such very healthy food, and during winters they are really helpful. And as I said, you can just simply, I mean, you have to be a bit careful about not overcooking them. Then they become elastic, you know. And then you could always air fry the mushrooms. That's the best way. It's healthy, Yeah, it's good, it's perfect for the winter. I know.
And you can also make mushroom bacon if you are vegan or vegetarian. Mushroom bacon, I've actually tried that myself, although I'm not vegetarian, but I like to eat it sometimes. Like, it's really good. It's really a healthy way to eat mushrooms. Yeah. मशरूम तो जो है रॉ भी ईट कर सकते हो आप, सैलेड में हाँ, डाल के हाँ। भी खा सकते हो, खा सकते हैं, दैट इज बिल्कुल द बेस्ट। बिल्कुल। जी। Amazing और session, I think. Yeah. और बहुत शलगम बढ़िया बहुत बढ़िया है। information. जिन लोगों को ज्यादा ठंड जुकाम ज्यादा तंग करता है, उनको मूली जो है ना सुबह सुबह खानी चाहिए। ओके या मूली के पराठे। पराठे भी खाओ, ऐसे खाओ। परांठे तो खाने ही है, परांठों के बिना थोड़ी गुजारा है। या। फिर सुबह सुबह अच्छे लगते हैं। और शलगम का सूप जो है ये भी बहुत बढ़िया है। ये आपको जुकाम वगैरह में अदरक वदरक के चक्कर में से ज्यादा अच्छा आपको जो है अपना शलगम का सूप हेल्प करेगा। कहते हैं खाओ शलगम, खांसी रहे ना बलगम। वाह वाह वाह, क्या कहने। तो बहुत अच्छी चीज है शलगम। तो आप रॉ Yes. खाएं शलगम, खासकर जैसे कि मक्की की रोटी के साथ तो शलगम की सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। बहुत अच्छी लगती है, हाँ बहुत ज्यादा। या हमारी हम मुझे सरसों के साग से भी ज्यादा मजा आता है शलगम के साथ शलगम मक्की के की साथ, रोटी। yes. वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड। नहीं, हम संतोष जी को मुल्तानी पता है, स्टाइल की बनाते हैं, थोड़ी सी हल्का सा मीठा डाल के, मुल्तानी टच हाँ, दे। या शलगम में मेरे हल्का सा डाल मदर लेते लोग हैं कई बनाते शक्कर, थे। हाँ हल्का सा वो डाल। लोगों क्योंकि उसकी जो वो ना तुरछाई है वो आई नो। उसको वो दूर हट करती है, जाती है। लेकिन लेकिन वो डालने से शलगम की सारी तासीर खत्म हो जाती है। ओके। आपको ये भी बता दूं। बट इंडिया में जो शलगम मिलते हैं ना वो बहुत मीठे होते हैं, इट सेल्फ मीठे होते हैं, तो वो आप देखो, रॉ भी खाते हो तो बहुत टेस्ट आता है उसका। मैं तो हाँ नहीं, शलगम है ना इंडिया में 3 तरह के बल्कि 4 तरह के, एक वाइट होते हैं, एक थोड़े से वाइट और थोड़े से पिंक लाल और होते व्हाइट। हैं, एक हाँ बिल्कुल जी। लाल होते हैं, और मीठे जो शलगम ना सबसे ज्यादा वो येलो वाले, चलो ओके। तो यहाँ नहीं मिलते। यहाँ हाँ, आपको जो है वो जनरली वाइट और ऊपर थोड़ा सा रेड वाले मिलते हैं। संतोष जी को पता है कि मैं तो जब शलगम लेके आता हूँ बनाने के म्यूट आधे हो ज्यादा गया, वैसे ही खा लेते हैं। म्यूट हो गया आपका गुरुदत्त जी। फिर से आपकी रेसिपी फिर से रह गई, दोबारा रिपीट करो। दोबारा रिपीट करो गुरुदत्त जी, जब आप शलगम बनाते हो तो, नहीं, खाते हो तो। मैं तो काटते काटते कच्चे खा जाता हूँ। हाँ, सेम हियर। खा जाने हैं मैंने। ये चीजें तो अवॉइड ही नहीं कर सकते हम लोग, पंजाबी लोग। शलगम हो गए, गोभी होगी, गाजर होगी, बल्कि ये सारे मेरे घर वाले मेरे को देख के भी नहीं फॉलो करते। मेरे को कि ले कैसे कच्चे खा जाते हो आप। मैंने कहा अरे कच्चे खाने चाहिए। खाने चाहिए बिल्कुल। नेचुरल, मोस्ट नेचुरल फॉर्म में जब भी हम इन चीजों को कंज्यूम करते हैं, यस, तो हम नेचुरोपैथी में भी कहते हैं हम लोग कि जब गॉड ने ये चीजें दी हैं तो उन्होंने ये दी कि आप खा लो, इसलिए तो नहीं दी कि आप उनको तल तल के खाओ। एक्चुअली दे आर रेडी टू ईट, दे आर रेडी टू ईट। रेडी टू ईट। यस, दे आर वो मेड गिरनी टू है बी लेके लाइक कह रहा था मैं जा रहा हूँ काफी देर हो Okay गई। जी, I think let's end the session. बहुत बढ़िया session, very nice discussion. थैंक यू। Thank you everyone. ओके जी, टेक केयर एंड ओके। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आलू बड़े करारे धर्म नाल, आलू बड़े आलू बड़े करा। मीठा वेरी वाजा नाइस। मेरे को लगता अरे है एंथम बन जाना चाहिए। वेरी नाइस। थैंक यू। Very nice ओके, everyone. थैंक यू जी। Okay, then थैंक I यू, will हैव अ bye. ग्रेट इवनिंग, गुड Bye. मॉर्निंग बाय मीता एवरीबॉडी। जी। Enjoy your evening Bye. with यू mushroom टू, soup. बाय। या थैंक यू श्योर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Okay.